الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کی اس عظیم و باوقار مجلس میں میں فیض الرحمان ندوی IRS کی طرف سے آپ سبھی آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا. اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری مستقیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. قاری مستقیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. قاری صاحب نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی. اور ان کے پاس ہمارے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر چاند پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ خود اپنے منہ پر آ گرتی ہے. میڈیا نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کیچڑ اچھالا، غلط فہمی اور بدگمانی پھیلائی گئی اور اسلام کو ہر طرح سے بدنام کیا گیا اور اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے. ایسے موقع پر ہمارے درمیان سے ہماری قوم کا ایک فرد کھڑا ہوتا ہے جو اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے اور ایسے سائنسی اور تشفی بخش جوابات دیتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. بلکہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے جوابات سننے کے بعد اسلام لانے کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ کا فرمان ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. جب ہم حق کی چوٹ باطل کے دماغ پر مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کے ماننے والے نہیں رہیں گے، تو یہ بکواس ہے. ایسے جوابات دینے والے ہماری قوم کے جو ہونہار فرزند ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. آئیے آج ہم اس عظیم داعی اسلام کا استقبال کرتے ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے؟ داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں اور اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے، لیکن چند مواقع پر جب آرگنائزر افطار کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات کہوں اردو یا ہندی میں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. تقریر کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد پر توجہ دیں گے. تقریر شروع کرنے کے پہلے میں اعظم کیمپس کے مینجمنٹ کمیٹی کا شکر گزار ہوں
क्या उन्हें प्रोग्राम माशाल्लाह 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किए। और उसके बाद मैं पूना पुलिस फोर्स का शुक्रगुजार हूं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अमन से जाए। और महसूस हुआ तो कल और आज भी उनने डॉग के बॉम्ब स्क्वाड भेजे कि अगर कोई चाहता है कि इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाए तो उसे पकड़ ले। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि प्रोग्राम के पहले उनने कुत्ते लेके आए, कल भी आज भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह उनकी मदद से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 दिन का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमन से गुजरेगा इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और ये तकरीर सबसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजी में की थी, बंबई में 2 साल पहले सितंबर 2006 में, बिल्कुल जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के 2 महीने बाद जो सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। और उस वक्त बंबई का माहौल बहुत गंभीर था और काफी मुसलमान फिक्रमंद थे। और कई मुसलमानों ने मुझसे दरख्वास्त की कि ऐसे माहौल में जाकिर भाई आप ही तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो काफी लोग मानते हैं मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, गवर्नमेंट में। जो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो भी इज्जत देता है। और दूसरी तरफ कई बॉम्बे के सीनियर पुलिस ऑफिसरान मुझसे दरखास्त की कि आप मुसलमानों से खिताब करो माहौल को समझाने के लिए। तो आई वॉज ऑन द एज ऑफ अ सॉर्ड। मुझे 2 तरफा जिम्मेदारियां थी, और क्योंकि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक की बात कहना है। तो इस माहौल में सबसे पहली बार मैंने अंग्रेजी में तकरीर की, इस टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, 2 साल पहले बंबई में सितंबर 2006 में शनमुखानंद हॉल में। इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया, और उस जुमले ने ये तकरीर को जन्म दिया, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म। और बहुत तहकीक करने के बाद ये पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये डेफिनेशन, ये माना हर वक्त बदलता है डिपेंडिंग अपॉन
the geographical location, depending upon the historical background. इलाके के एतबार से ये डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से ये डेफिनेशन बदलता है. इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है. लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार ये लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले ये इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में, और सबसे पहले बार ये वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था एडवर्ड बर्क. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर. और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कहा जाता है क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया. गिलोटीन में सिर को काट देना. 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया. 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया. तो सबसे पहली बार ये ब्रिटिश स्टेटमेंट एडवर्ड बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को. जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं. मैं पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा. चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने. 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग से सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं. वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है. वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी. वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था. सन 1888 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में बड़ा जुलूस था लेबर का. उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर और पुलिसमैन डीगन मर जाता है. फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है. और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट. 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे. 6 सितंबर 1901 में यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम था विलियम मैकिनली, उसकी हत्या होती है. ही इज असैसिनेटेड. 2 बार गोली मारा जाता है. गोली मारने वाले का नाम था लियोन. वो एक अनार्किस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था. 1 अक्टूबर सन 1910 में लॉस एंजलिस टाइम्स, उसके बिल्डिंग में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, एक बम धमाका होता है और 21 लोग मारे जाते हैं. उसके जिम्मेदार थे जोसेफ और जेम्स मकनामारा, दोनों गैर मुस्लिम थे. 28 जून 1914 में आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी की हत्या होती है. इसके वजह से जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग, दुनिया जंग नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है. और इसके जिम्मेदार थे एक ग्रुप जिसका नाम था यंग बॉस्नियंस और इसमें अक्सर सर्ब थे, गैर मुसलमान थे. 16 अप्रैल
1925 में सेंट नेडेलिया चर्च, जो बल्गेरिया के कैपिटल सोफिया में था, वहां एक बम धमाका होता है और 150 लोग की हत्या होती है और 500 से ज्यादा घायल होते हैं। ये बल्गेरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। सारी तारीख में बल्गेरिया के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले के जिम्मेदार थे बीसीपी, बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो गैर मुसलमान थे। 9 अक्टूबर 1934 में किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया, उसकी हत्या होती है। उसके साथ मारा जाता है फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर। दोनों की हत्या के जिम्मेदार थे लादा जोसेफ, जो गैर मुसलमान थे, मुस्लिम नहीं थे। ऐसे कई मिसाल है। 1 मई 1961 जो सबसे पहली प्लेन जो हाईजैक की गई थी यूएसए की, एक आदमी जिसका नाम था पोर्टो रिकॉन, वो प्लेन को हाईजैक करता है, अगवा करता है और ले जाता है हवाना, क्यूबा में, और वहां असाइलम पाता है। वो एक गैर मुसलमान था, मुस्लिम नहीं था। यूएस एम्बेसडर ऑफ ग्वाटेमाला, 1968 में उसकी हत्या होती है। हत्या करने वाला गैर मुस्लिम रहता है। 1969 यूएस एम्बेसडर ऑफ जापान, एक जापानीज उसको अटैक करता है छुरी के जरिए, वो गैर मुस्लिम था। 1969 में यूएस एम्बेसडर ऑफ ब्राजील, उसको किडनैप किया जाता है, उसको अगवा किया जाता है। अगवा करने वाला आदमी मार्क्सिस्ट था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा में बॉम्बिंग होती है और 166 लोग की हत्या होती है। उस वक्त तक के ये यूएसए का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 166 पीपल किल्ड, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मैंडेट एट दैट टाइम। फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइन, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइन। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था। ऐसी में हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है। क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन है, वरना आपको बहुत कम मिलेंगे मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ग्रुप है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते हैं इरगुन, वो अरबों जैसे कपड़े पहन के
अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे और 5 थे अदर्स दिगर मजहब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई। जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर था, और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बिगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, हागाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, इनके सदर के कई नाम हैं, रास्पेकेगिन, मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड, कितना दोगलेपना। वही लोग के लिए जब वो झगड़ रहे थे, आज पैलेस्टीनियनों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए और उन्हें कहते कि वो टेररिस्ट है। और अब तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कजन रिश्तेदार है, एलन वसैलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग, और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है। ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर, वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है, फिर आप घर के बाहर कहते कि मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते कि आप टेररिस्ट है। और जब आतंकवादी हमले की हम तहकीक करते हैं, पता लगता है कि जर्मनी में 1968 टू 1992 में एक ग्रुप थी, बादर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी। कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1978 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर एल्डो मोरो को अगवा किए और 55 दिन बाद उसकी हत्या की। ये गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। इसी तरीके की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था, जिसे कहते थे जापानीज रेड आर्मी। और इनने कोशिश की कि नर्व गैस के जरिए एक टोक्यो के ट्यूब स्टेशन में हजारों की हत्या करने की, लेकिन लोग बच गए। सिर्फ 12 लोग मारे गए। उनने नर्व गैस डाली टोक्यो के सब स्टेशन में, सिर्फ 12 लोग मरे और 5700 घायल हुए। सेम चीज योकोहामा में किया। ये ग्रुप जो थी, ये ओम शिंक्यो की ग्रुप थी, जो एक बुद्धिस्ट कल्ट है। ये बुद्धिस्ट थे, मुसलमान नहीं थे। ऐसी आप कई मिसाल पेश कर सकते हैं। यूके में हम जानते हैं कि सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक और सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक किए वो है IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको ये नहीं मिलेगा कि कैथोलिक टेररिस्ट ग्रुप, कहा जाएगा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, क्योंकि मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट।
باقی کون غلط کام کرتا ہے تو اسے علاقے سے جانا جاتا ہے. مسلمان چاہے یو ایس اے میں ہو, سعودی میں ہو, یو کے میں ہو یا انڈیا میں ہو, تو مسلمان جیسا پہچانا جاتا ہے. اچھے کام کیے تو کہیں گے انڈین نے اچھے کام کیا, مسلمان نے نہیں. انڈین کو نوبل پرائز ملا, مسلمان کو نہیں. تو ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ اور یہ جو آرگنائزیشن ہے آئرش ریپبلکن آرمی, وہ خصوصاً کیتھولک آرگنائزیشن ہے, اسی لیے جھگڑا کر رہی ہے پولیٹیشین کے ساتھ اور کئی سالوں سے کر رہی ہے. 100 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک کیے ان نے 1972 میں 22 فروری میں ایلڈرشاٹ میں ان نے بم کا دھماکہ کیا جس میں 7 لوگوں کا قتل ہوا. 21 جولائی 1972 بیلفاسٹ شہر میں JIRA نے اور ایک بم دھماکہ کیا جس میں 11 لوگ کا قتل ہوا اور 130 گھائل ہوئے. 10 دن بعد 31 جولائی 1972 میں کلاڈی میں 3 بم دھماکہ کیے انہوں نے اور اس میں 9 لوگ کی ہتیا ہوئی. 1974 میں گلفورڈ پب میں انہوں نے بم دھماکہ کیا جس میں 5 لوگ کا انتقال ہوا اور 44 لوگ گھائل ہوئے. اسی سال 1974 میں برمنگھم پب میں پھر سے ایک بم دھماکہ کیا جس میں 21 لوگ کا قتل ہوا اینڈ 182 گھائل ہوئے. JIRA نے 1996 میں لندن میں بم دھماکہ کیا جس میں 2 لوگ کا قتل ہوا اور 100 لوگ سے زیادہ گھائل ہوئے. اسی سال 1996 میں مینچسٹر میں ایک بم پھوڑا شاپنگ کمپلیکس کے باہر جس میں 206 لوگ گھائل ہوئے. 1998 میں JIRA نے ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم برسٹ کیا بیمبرگ شہر میں جوتے کی دکان کے باہر جس میں 35 لوگ گھائل ہوئے اور 200 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے. JIRA نے اسی سال 1998 میں اومیگ میں اور ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم پھوڑا جس میں 29 لوگ کا انتقال ہوا, 29 لوگ کا قتل ہوا اور 330 گھائل ہوئے. 2001 میں BBC میں پھر سے انہیں بم پھوڑا. IRA کے بارے میں اگر میں تقریر کرنے لگوں تو ایک دن نکل جائے گا. کیتھولک لوگ ہیں لیکن کہا جاتا ہے IRA آئرش ریپبلکن آرمی. اس طریقے سے کئی مثال پیش کر سکتا ہوں. اسپین اور فرانس میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے ETA جو بہت سے آتنکوادی حملے کرتے ہیں. افریقہ میں اتنے آتنکوادی گروہ ہے کہ میڈیا کو وقت ہی نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس میں سے سب سے خطرناک ہے لارڈ سیلویشن آرمی. یہ ایک کرسچن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لارڈ سیلویشن آرمی, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو ٹرین کرتی ہے ٹیررسٹ اٹیک کمٹ کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹرین کرتی ہے آتنکوادی حملے کرنے کے لیے. بہت خطرناک آرگنائزیشن ہے. ہائی کرسچن آرگنائزیشن, نام ہے لارڈ سیلویشن آرمی. شری لنکا میں ہم جانتے ہیں جو بہت خطرناک ٹیرر آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے LTTE, لبریشن ٹائیگرز آف تامل. شارٹ فارم ہے تامل ٹائیگرز. ہمیشہ پیپر میں آتا ہے LTTE تامل ٹائیگرز. کون ہے وہ؟ ہندو لوگ ہیں. اور جب تحقیق کرتے ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوسائڈ بامبنگ کو مشہور کیا. اور ایک کتاب لکھی امریکن نے, رابرٹ پیپ نے, جو ایسوسیٹ پروفیسر شکاگو میں تھے, ڈائنگ ٹو ون. ان کا ریسرچ تھا ٹیررسٹ اٹیک پہ, سوسائڈ بامبنگ پہ. اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو الزام لگاتے مسلمان سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, اس کی شروعات کس نے کی؟ اس کو سب سے عام کس نے کیا؟ کس نے سب سے عام کیا اسے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 جو آج کے دور میں جو سوسائڈ بامبنگ کے ماہر تھے وہ LTTE ہندو تھے. اور ہم جانتے ہیں اس کی مثال ہم جانتے ہیں کہ 21 مئی 1991 ہمارے پردھان منتری تھے پرائم منسٹر راجیو گاندھی کو سوسائڈ بم کے ذریعے ان کا قتل کیا گیا تھا. ایک عورت LTTE گروپ کی, تامل ٹائیگرز کی, اپنے جسم پہ بم باندھ کے چھپا کے
वो हार पहनाना जाते हैं उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है, और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बात में अमेरिकन लोग नहीं किया। आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। एलटीटी ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदरवाना ग्रुप, और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उनने गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है, उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, पता ही नहीं। मैं जो बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुलाए थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है, और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाअल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोचा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है क्या नहीं। गया मैं, फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंडगन के साथ। मैं वहां गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूं असम में, एयरपोर्ट को उतरता हूं, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंडगन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंडगन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर ऐसा हुआ मुझे 3 दिन बाद
کہ اگر یہ 4 پولیس افسران میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو شاید میں آج نہیں ہوتا تھا یہاں. ہمیں تو پتا ہی نہیں آسام کی حالت کیا ہے. آسام میں اتنے آتنکوادی حملے ہو رہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے. مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا. میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں ہمیشہ. وہاں جانے کے بعد پتا چلا, انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن از ون آف دا موسٹ ڈینجرس, بہت خطرناک. ایسے کئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن آسام میں, بوڈو, میزورم میں کئی کرسچن آرگنائزیشن ہے. میزو کرسچن آف ناگا, وہ بھی آتنکوادی حملے کرتے. اور ایک حملہ کیا تھا 2 اکتوبر کو, 2 تاریخ اکتوبر کے سن 1984 میں 44 ہندو لوگ کا قتل کرتے یہ کرسچن آرگنائزیشن, اور کئی لوگ کو زخمی کرتے. خالی کرسچن لوگ نے کتنے حملے کیے ہندوستان میں وقت نہیں ہے کیونکہ 10 بجے تقریر بند کرنا ہے ہمیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہندوستان میں اگر ڈر ہے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, وہ ہے ماؤسٹ. یہ ماؤسٹ لوگ اکارڈنگ ٹو پولیس ریکارڈ ہندوستان میں 600 ڈسٹرکٹ ہے. 600 ڈسٹرکٹ میں سے 150 سے زیادہ میں ان کا ہولڈ ہے ماؤسٹ لوگ کا. اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ پوری پولیس اسٹیشن کو تباہ کرتے. پولیس اسٹیشن کو, جو گاؤں ان کے خلاف ہے, گاؤں کے گاؤں کو تباہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جو سیکورٹی ایکسپرٹ جو لکھتے ہیں انڈیا کے, اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں لکھا تھا سوامی نومکس کے اندر, سوامی نارائن لکھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا لگتا کہ کیوں یہ انڈین گورنمنٹ مسلم ٹیررسٹ کو اتنا امپورٹنس دے رہی ہے. سب سے زیادہ نقصان جو اس دیش میں ہو رہا ہے وہ ماؤسٹ کے ذریعے. یہ ماؤسٹ لوگ جب حملہ کرتے پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کرتے, گاؤں کے گاؤں کو تباہ کرتے. 600 ڈسٹرکٹ میں سے 150 سے زیادہ ان کا ہولڈ ہے. 1/3 آف دا انڈیا دے ہیو کورڈ. 1/3 حصہ. کتنے لوگ ماؤسٹ کو جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 50,000 لوگ تو ہوئیں گے, تقریباً 100 ہاتھ دکھتے. شاید آپ نے میری تقریر سنی ہوگی انگریزی کی, اس طرح سے مسلم مونوپولی ہو سکتا ہے. وہاں بھی میں نے کہا تھا. اور 2 سال پہلے تقریر کرنے کے پہلے 9 ستمبر 2006 میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں کہ پولیس نے 875 راکٹس جو ماؤسٹ کے تھے ان کو پکڑ لیا. 875 راکٹس اینڈ 30 راکٹ لانچرز. 30 راکٹ لانچرز, 875 راکٹس. اور وہاں کا ڈی جی پی آندھرا پردیش کہتا ہے کہ ایک راکٹ ہیلی کاپٹر کو اڑا سکتا ہے, ایک راکٹ پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کر سکتا ہے 600 میٹر دور سے. یعنی آدھا کلومیٹر دور سے بیٹھ کے اس راکٹ سے حملہ کرے تو پولیس اسٹیشن تباہ ہو سکتا ہے, ہیلی کاپٹر تباہ ہو سکتا ہے, بلڈنگ کے بلڈنگ اڑ سکتی ہے. راکٹ لانچرز, یہ تو پورے دیش پہ حملہ کرنے کی پریپریشن ہے. آرٹیکل آئے گا چھوٹا, انسائڈ انفارمیشن آئیں گے, ہیڈ لائنس پہ نہیں آئے گا, انسائڈ پیجز پہ آئیں گا, 9 پیج پہ, 7 پیج پہ. کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں ہو. آپ پوچھ سکتے. تو یہ سوامی نارائن کہتے ہیں کہ یہ انڈین گورنمنٹ یہ ویسٹرن پالیسی کیوں اختیار کر رہی ہے. سب سے زیادہ خطرہ جو ہے, انہیں ہزاروں لوگ کی ہتیا کی ہے, ان کے بارے میں ان کو فکر نہیں, ان کو فکر ہے مسلم ٹیررسٹ کے بارے میں. فہرست تو لمبی ہے, وقت نہیں ہے. اس میں سے ایک کا نام ہے, انٹرنیشنل نام لوں تو انڈین نام بھی لینا چاہیے نا مجھے. انڈیا میں سب سے زیادہ قتل کس نے کیا؟ سب سے زیادہ قتل کیا اشوکا نے. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اسکول میں کہ کلنگا کے وار میں 1 لاکھ لوگ مارے جاتے. کب ہوئی وار؟ 261 BC, 261 سن 261 بفور کرائسٹ. یعنی 2270 سال پہلے اشوکا نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کی. آپ سوچ سکتے 2000 سال پہلے پاپولیشن کتنی کم تھی. جتنی پاپولیشن کم, ابھی پاپولیشن زیادہ ہے.
कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मानना है आज की तारीख में, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। 1 लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान के अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन के। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से संग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक के वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे के सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है का सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटलिस्ट कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज इस्लाम में गलत है, वो चीज इस्लाम में गलत है, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते, ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा इजाद किया गया,
वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, बाइबल का हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो ये अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी और अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज द पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है, उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज द पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात को अमल में लाता है, खुसूसन इस्लाम। इस्लाम लफ्ज मतलब बुनियाद परस्त, मतलब फंडामेंटलिस्ट। फौरन हमारे दिमाग में आएगा फंडामेंटलिस्ट मतलब मुस्लिम। इजाद किया गया था पहले बार क्रिश्चियन के लिए, आज इस्तेमाल हो रहा मुसलमान के लिए। फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त, और बुनियाद परस्त का डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, क्या बुनियाद परस्त ऐसा शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई तालीमात, कोई मजहब की तालीमात पे अमल करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम द एक्सट्रीमिस्ट। अक्सर लोग कहते हैं नो नो आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। किस बात का डर है आपको? मैं कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, मैं कहता हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली जस्ट। What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? जब लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मैं कहता हूं बेशक मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं, मैं शिद्दत पसंद हूं। शिद्दत पसंद होने में गलत बात क्या है? कुरान कहता है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली जस्ट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मर्सीफुल। हमें शिद्दत के साथ अदल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा अदल, हमारे फायदे के लिए तो अदल किया, हमारे फायदे के लिए तो अदल नहीं किया। ये कुरान की तालीमात है। हमें किससे डर? ये बात क्या देखना चाहिए कि गलत, और डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चीज में शिद्दत मत इख्तियार कीजिए। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम द टेररिस्ट, उससे आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है? दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेज टेरर इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है।
تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے دل میں ہر مسلمان دہشت پیدا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, جب بھی کوئی ریپسٹ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, جب بھی کوئی غلط انسان مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. یہ کہتا ہے قرآن. جس طریقے سے پولیس چور کے دل میں دہشت پیدا کرتی ہے, اسی طور سے قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ آپ مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرو. لیکن میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس طریقے سے کوئی بھی مسلمان ایک بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا, یہ لفظ آتنکواد, دہشت گردی یا آتنکوادی یا دہشت گرد, اس کے کئی کانفلکٹنگ ڈیفینیشنز ہے, کئی اختلافی ڈیفینیشنز ہے, اور بہت سے بار وہی شخص کو دو لیبل دیا جاتا ہے وہی ایکٹیویٹی کے لیے, وہی کام کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ 60 سال پہلے کئی سالوں تک انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے, اور کئی ہندوستانی اپنے آزادی کے لیے اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو برٹش گورنمنٹ کہتی تھی ٹیررسٹ, آتنکوادی, دہشت گرد. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ ہے پیٹریوٹ, یہ دیش بھکت ہے. وہی شخص, وہی کام, دو لیبل, دو لقب. ہم جانتے ہیں بھگت سنگھ, سبھاش چندر بوس, چندر شیکھر آزاد, یہ سب اپنے دیش کے لیے لڑ رہے تھے. ان کے سر کے اوپر نام لگایا انگریز نے دہشت گرد. اگر آپ انگریز کے ویو سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے, تو آپ بے شک کہیں گے دہشت گرد تھے. لیکن جب آپ عام ہندوستانی سے پوچھتے کہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنے کا, تو ہم کہیں گے یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ دیش بھکت ہے. وہی لوگ, وہی کام, دو لیبل. تو لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس کام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. ایسے کئی مثال ہے تاریخ میں. ہم جانتے ہیں امریکن ریولوشن میں 1775 میں جب برٹشرز امریکہ پہ رول کر رہے تھے, بہت سے امریکن اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. ان میں سے تھا جارج واشنگٹن, بینجامن فرینکلن. اس وقت 1775 برٹش گورنمنٹ کے حساب سے نمبر 1 ٹیررسٹ تھا جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن according to the British government was terrorist number 1 at that time. آزادی کے بعد یہی ٹیررسٹ نمبر 1 جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA, اور وہ گاڈ فادر ہے سب پریزیڈنٹ کا انکلوڈنگ جارج بش. ایسے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا, گوری کی حکومت جب تھی ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر لیا. آفٹر انڈیپینڈنس, سفید حکومت جانے کے بعد جب ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملا, آزادی ملی, اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. دا وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ, گوری کی حکومت کہتے تھے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے, 25 سال تک قید ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ بہت خراب انسان تھا بعد میں اچھا بنا, وہی کام کے لیے جس کے لیے وہ 25 سال کے لیے جیل میں گیا, اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. اس کی کیا معنی ہے؟ 25 سال تک قید ہوا, آتنکواد کا لیبل لگا, بعد میں اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں
جو بھی لقب وہ دینا چاہتا ہے آپ کو دے سکتا ہے. حق کی تو کچھ بنیاد ہی نہیں ہے. حقیقت کو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ہے. جو پاور میں جس کے پاس طاقت ہے وہ جو لقب دیتا ہے لگ جاتا ہے. آج غیر مسلمان کہہ رہے مسلمان ٹیررسٹ سے لقب لگ گیا. حقیقت ہے کہ نہیں وہ کوئی جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. جب میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو انڈین پریس میں اکثر پریس انٹرویو ہوتے رہتے تو مجھے کہہ رہے تھے ٹیررزم کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا جب برٹش پریس کہنے لگی بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ آپ مانتے؟ بولتے نہیں. کیوں؟ وہ غلط ہے. تو آج جب ویسٹرن میڈیا برٹشرز امریکن کہتے مسلم ٹیررسٹ ہے تو آپ کیوں مانتے؟ تو ہنسنے لگا. میں نے بولا آپ نے تحقیق کی؟ بولتے نہیں. بس چھاپ دیا جو روٹرز دکھتی ہے چھاپ دیا. آپ نے تحقیق کی؟ بولے نہیں. کیوں؟ اس وقت کیونکہ آپ ہندوستانی تھے آپ کو پتا تو نہیں چھاپی. آج جب نہیں پتا تو مت چھاپو نا. کچھ بھی لقب دے دیتے آپ چھاپ دیتے. کیوں؟ جب میں آسٹریلیا میں گیا تھا 2001 میں دسمبر میں 9/11 کے چند مہینے بعد آسٹریلیا میں میرا ٹاپک تھا ٹیررزم اینڈ جہاد اسلامک پرسپیکٹو. جہاد و دہشت گردی اسلامک نظریہ. تقریر ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال US کونسل جنرل نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک ڈو یو کنسیڈر اوسامہ بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا آپ کی نظر میں اوسامہ بن لادن ایک دہشت گرد ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا میں اوسامہ بن لادن کو نہیں جانتا ہوں. نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. لیکن آپ سمجھتے اگر میں رپلائی دوں BBC اور CNN کو سن کے اگر میں BBC اور CNN کو سن کے جواب دوں گا تو میرے پاس کوئی دو رائے نہیں بٹ کہنے پڑے گا دہشت گرد ہے. لیکن قرآن مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی چیز کہتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. تو میں BBC دیکھ کے CNN دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ ہے کہ نہیں. میں اسے اچھا بھی نہیں کہتا ہوں برا بھی نہیں کہتا ہوں. نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. لیکن میں یہ بات بالکل صاف طور سے کہہ سکتا ہوں کہ BBC چینل پہ CNN چینل پہ کئی چینل پہ خود میں نے دیکھا کہ افغانستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے. جارج بش نے کہا کہ اٹیک وار آن ٹیرر افغانستان پہ اٹیک ہوا عراق پہ اٹیک ہوا ہزاروں لوگ مارے گئے. 9/11 جو ہوا تو میں نے کہا یہ تو خود جو 9/11 جو ہوا یہ الزام ہے کہ اسامہ بن لادن نے کیا. میں نہیں جانتا ہوں. جو سائنٹسٹ ہے USA کے وہ کہتے ہیں انسائڈ جاب جارج بش نے خود کیا ہے. یہ میں نہیں کہتا نو کہتے صحیح ہے کہ حقیقت ہے بعد میں تحقیق کریں گے ابھی وقت نہیں ہے. میں جارج بش کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ جانتا ہوں کہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا نیوز پیپر میں اس کے میڈیا پہ اس کے خود کے میڈیا پہ اس کے خود کے چینل کے اوپر کیا ہزاروں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں اس کے وجہ سے. کئی بے گناہ کو مارا گیا عراق میں اس نے سینکشن لگائے. کئی بچے لوگ 5 لاکھ سے زیادہ بچے لوگ عراق میں مرے بیکاز آف دا ٹیک سینکشن. تو میرے نظر میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہتھیارہ سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش. فوراً US کونسل جنرل لٹ گیا اور آڈیٹوریم کے باہر چلے گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ورس نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل کا سروناش ہوئے گا اور فی نفسی باطل کو ختم ہونا ہے. فوراً ہیڈ لائنز میں
ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट एंड सेज नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इज जॉर्ज बुश। ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं। मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा। नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इनोसेंट मैन इन इराक। ह्यूगो चेवास ने कहा नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद के प्रेसिडेंट इलेक्ट इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक एमपी जो ब्रिटिश का है यूके में, जॉर्ज गैलेवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए जो टेररिस्ट को नीचे, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलेवे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने कहा? ज्योति बासु, उसने कहा 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश। मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं। मैंने तो 2001 में कहा था, उस टाइम तो कौन हिम्मत नहीं करता था, अल्लाह की मदद थी। आज तो हर टॉम डिक एंड हैरी कहता है। जब मैं लंदन में लेक्चर दिया जिहाद एंड टेररिज्म पे, तकरीर थी जिहाद और दहशतगर्दी पे इस्लामिक पस मंजर में, अच्छी तकरीर थी माशाअल्लाह। पहला सवाल एक नौजवान उठ के कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक, डेथ टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश का कत्ल करो। मैंने इतनी अच्छी तकरीर किया, कितने गैर मुसलमान थे, मेरे पूरे तकरीर पे पानी फेर दिया उसने। सब लोग ताली मारने लगे, जॉर्ज बुश को कत्ल करो, जॉर्ज बुश को कत्ल करो। मेरा मकसद है दावा देना, मेरा मकसद है अमन फैलाना। 1 घंटे की तकरीर की, इतनी मिसाल दी इस्लाम की, और ये नौजवान उठ के कहता है जॉर्ज बुश का कत्ल करो, और लोग ताली मारने लगे। तो मैंने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग थे, दोनों का नाम था उमर। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये उमरैन में से, ये 2 उमर में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैंने कहा कि हम मुसलमान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। उसका कत्ल करके मुझे क्या कुछ फायदा होगा? तो सीरत जब पढ़ेंगे, अगर वो दुश्मन, हम जानते अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, बहुत सब लोग डरते थे मुसलमान, उनको हिदायत दी। फिर सबसे बेहतरीन मुबल्लिग मुजाहिद बन गए इस्लाम के लिए। इसीलिए माइकल साथ ने उनको 100 की टॉप लिस्टिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 दिया और उनको दिया 52 नंबर पे। या कह सकते हैं कि टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश में से कोई को हिदायत दे। हमें इस्लाम पेश करने में सही तरीके से करना, हिकमत के साथ, जज्बाती बन के नहीं। गैर मुसलमान है, हम देखते हैं, मुझे पता लगता है हमें
کہ जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है। हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरी तहकीक के हिसाब से ये मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज द मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियन। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिनका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत की है। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज इसकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियन। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काय के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे एड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता हूं। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का।